Hey everyone, welcome back all of you to lecture number 2 of the series of lectures on rectification of errors. Guys, I request you to watch lecture number 1 first to understand this lecture number 2, which is given in the description box. So let's start. First, we will revise whatever we have learned in lecture number 1, in which we have seen meaning of error, is it right? And later on, after that we have discussed some illustrative cases of errors which you can see on the screen, and then we discussed about types of errors, which was important one. So I will revise quickly. First, what are the types of errors we can classify into, just a second. Errors we can classify into two types. One is error of principle, and one is clerical error. Clerical error are further classified into error of omission, error of commission, and compensating errors. Error of omission is further classified into two parts: partial omission, नहीं तो full omission. So let's understand these terms quickly. Error means a mistake while writing the accounts. In a simple language I am discussing. Then errors are categorized in these categories so that we can understand the accounting treatment of rectification, right? So according to this we are going to follow the treatment of accounting. Errors are classified into two parts: errors of principles or clerical errors. What is the error of principle? Error of principle means you are not following the accounting concept clearly. There is a mistake in following or understanding the accounting concept, and because of which that error happened. Like treating capital expenditure as a revenue expenditure, nahi to revenue expenditure as a capital expenditure. That will be called as a error of principle. This will be the example of that. Then clerical error means error done while writing the accounts, in which this can be classified under error of omission, error of commission, and compensating error. What is error of omission? Means you are forgetting to pass the entry either fully, nahi to partly. Partial omission means you have given effect in one account only. This will be done while posting from journal to the ledger. In while preparing journal, this is not possible. Partial omission is not possible, but while making posting, this is possible. You are giving effect in, you are posting the effect in one account only. The second effect you forgot to post. In that case, that will be called as partial omission. And second case is full omission, which is you are ignoring or you are forgetting the passing of entry totally fully. Both the effects you have not considered, debit as well as credit. Then error of commission means while writing the amounts or while posting the amounts in ledger, यू आर मेकिंग द मिस्टेक. तो अमाउंट में गलती हो सकती है, नहीं तो किसी गलत अकाउंट में पोस्ट कर दिया आपने, तो दैट विल बी द एरर ऑफ कमीशन. एंड कॉम्पनसेटिंग एरर मीन्स पहले एरर का जो गलत इफेक्ट है वो हटाने के लिए दूसरा एक एरर किया जाता है. मतलब एक झूठ बोलने के लिए एक झूठ नहीं पकड़ा जाए, इसलिए आप दूसरा झूठ बोलते हो, उसी प्रकार से दैट इज कॉल्ड एज अ कॉम्पनसेटिंग एरर. आर यू गेटिंग दिस टाइप्स ऑफ एरर्स? यस, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट वन. एंड एरर्स कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं वो भी हमने कल के लेक्चर में देखा. आई वंस अगेन रिपीट, लेक्चर इज गिवन इन, लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है. अगर आप लेक्चर 2 डायरेक्टली देख रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि लेक्चर 1 देख के आप यहाँ पे आना. एरर्स में ऑकर एट एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस. फर्स्ट स्टेज है व्हाइल रिकॉर्डिंग द जर्नल. आपको अकाउंटिंग का प्रोसेस तो पता है: जर्नल, लेजर, देन लेजर बैलेंसिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, and after that we prepare P&L account and बैलेंस शीट. जरूरी नहीं है
कि ट्रायल बैलेंस टैली हुआ, इसका मतलब हमारा अकाउंटिंग करेक्ट है। ट्रायल बैलेंस टैली होके भी गलतियां हो सकती है, जो हमने कल के लेक्चर में देखा है। इज इट राइट? यस। सो व्हाइल रिकॉर्डिंग द जर्नल किस प्रकार के एरर्स हो सकते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है, वो भी यहाँ पे ही हो सकता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एक बार आपने जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने में ही गलती कर दी तो इसका पोस्टिंग भी गलत हो जाएगा। इज इट राइट? देन एरर ऑफ ओमिशन, यहाँ पे फुल ओमिशन होने के चांस है जर्नल में। यहाँ पे जर्नल में कभी पार्शियल ओमिशन नहीं हो सकता है। हाँ, इनके सब्सिडरी बुक्स यू आर मेंटेनिंग, देन ओनली यू आर पासिंग द करेक्ट जर्नल एंट्री, बट व्हाइल पोस्टिंग देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप एरर ऑफ ओमिशन पार्शियल कर सकते हो। तो पोस्टिंग लेजर बनाते वक्त पार्शियल ओमिशन हो सकता है, जर्नल बनाते वक्त फुल ओमिशन ही होगा। इज इट राइट? देन एरर ऑफ कमीशन मींस अमाउंट लिखने में गलती, किसी अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करने में गलती, दैट विल बी कॉल्ड एज एरर ऑफ कमीशन। ठीक है बच्चों, तो ये जर्नल में ये 3 प्रकार के एरर होने के चांस है, लेकिन एरर ऑफ ओमिशन में फुल ओमिशन ही होगा। बट व्हाइल पोस्टिंग द एंट्रीज यू कैन सी एरर ऑफ ओमिशन में दोनों होने का चांस है। कंप्लीट ओमिशन यानी जर्नल में एंट्री लिख दी बट उसके दोनों इफेक्ट्स लेजर अकाउंट्स में देना आप भूल गए। नहीं तो पार्शियल ओमिशन मतलब क्या बच्चों? पार्शियल ओमिशन मतलब एक ही इफेक्ट दिया, जैसे कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दिस विल बी द जर्नल एंट्री। तो बैंक के डेबिट में टू कैश लिखा, लेकिन कैश के क्रेडिट में बाय बैंक लिखना आप भूल गए। आर यू गेटिंग इट? दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल ओमिशन। देन एरर ऑफ कमीशन हो सकते हैं, रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग हो सकता है। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, पहला इफेक्ट कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये बराबर लिख दिया। देन बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लिखना, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपने बराबर इफेक्ट दे दिया। बट दूसरा इफेक्ट जो कैश के क्रेडिट में देना है, वहां पे आपने गलती कर दी। इंस्टेड ऑफ राइटिंग अमाउंट इन कैश कॉलम यू हैव रिटन द अमाउंट इन डिस्काउंट कॉलम, दैट विल बी अ रॉन्ग पोस्टिंग। देन पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड, डेबिट को लिखना था क्रेडिट को लिख दिया। पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट, 200 रुपए लिखने थे, आपने गलती से 2000 रुपए लिख दिए। So these are the errors of commission which you can face while posting of entries in ledger. After posting of entries into ledger, we balance the ledger and at that time there can be a chance of totaling error that can happen there. And after that, after preparing the trial balance, there is a chance of error also while preparing the trial balance. Sorry, after closing the ledger balances or after taking the total of ledger accounts and closing it, you will get balances, and that balances you have to write in trial balance. So while writing trial balance also there is a chance of errors, like you can forget to write any balance of ledger account. समझ में आ रहा है बच्चों? ट्रायल बैलेंस पूरा लेजर बराबर क्लोज किया है, बैलेंस भी लिखा है, समझो डेबिट बैलेंस आया है तो आपने लिखा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। आर यू गेटिंग इट? वो सब करके आप आगे बढ़ते हो, ट्रायल बैलेंस में वो अमाउंट ही लिखना भूल जाते हो, तो दैट इज कंप्लीटली ओमिशन। इज इट राइट? देन एरर ऑफ कमीशन कौन से हो सकते हैं? वहां पे बैलेंस आया है 3000, आपने लिखा 300 ट्रायल बैलेंस में, रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, रॉन्ग अकाउंट लिख सकते हो। नहीं तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस, सॉरी लेजर में डेबिट बैलेंस है लेकिन ट्रायल बैलेंस में लिखते समय आपने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। तो ये 4 जगह है वहां जहां पे ये एरर्स हो सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग इट। नाउ let's discuss this errors from another point of view. To understand the accounting treatment, we should classify the errors into 2 types. Those errors that affect the trial balance and those errors that do not affect the trial balance. Now my friends, please understand this. Which error will affect the trial balance? ऐसे कौन से errors हैं जो ट्रायल बैलेंस पे डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे? तो बच्चों मैं आपको कहना चाहूंगा, जिस एरर में एक से ज्यादा अकाउंट, सॉरी एक ही अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, उस एरर में ट्रायल बैलेंस की टोटल अफेक्ट हो जाएगी। मींस जिस एंट्री में डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट नहीं हो रहा है, जिस एंट्री में डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट नहीं हो रहा है, ध्यान दो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, जिस एरर में, जिस गलती में डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट नहीं हो रहा है, वहां पे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम एस्पेक्ट आपको क्या बोलता है, एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ टू फोल्ड इफेक्ट, इवन इफ इट इज रॉन्ग। अगर आप डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल मैच कर रहे हो तो आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा, अदरवाइज ट्रायल बैलेंस वोंट टैली। इज इट क्लियर टू यू? नाउ सर एक एग्जांपल देके बताओ ना कि दोज दैट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, दोज एरर्स दैट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। तो बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एग्जांपल मैं कौन सा दे रहा हूं जरा समझ लो। परचेस किया है
तो मैंने परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स ऐसी जर्नल एंट्री पास की 10,000। अब देखो ट्रायल बैलेंस पे कौन से एरर्स अफेक्ट करेंगे। ये जर्नल मैंने बराबर लिखा, यानी जर्नल एंट्री, सब्सिडरी बुक्स नहीं है, रेगुलर जर्नल बुक में मैंने जर्नल एंट्री पास कर दी। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो ये जर्नल मैंने बराबर लिख दिया बच्चों। अब लेजर पोस्टिंग की जब बारी आई तो आपने दो लेजर्स इस एंट्री के साथ जो रिलेटेड है वो ड्रॉ किए, ऐसे समझो। परचेस अकाउंट एक बनाया आपने और दूसरा कौन सा है, क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनाया। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो बच्चों समझ में आ रहा है ना? हाँ। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, अमाउंट है समझो 10,000। ये आपने बराबर इफेक्ट दे दिया। मीन्स देखो बच्चों, मैंने आपको जब जर्नल लेजर पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या बोला था कि जो जर्नल एंट्री पास करते हो आपके जर्नल बुक में ऐसा प्रेजेंटेशन करते हो आप लोग, बराबर है ना? आपके जर्नल बुक में ऐसा प्रेजेंटेशन करते हो आप लोग। लेजर पोस्टिंग भी एक जर्नल एंट्री पास करने का तरीका ही है, सिर्फ उसका प्रेजेंटेशन अलग है। लेजर पोस्टिंग में क्या मैं जर्नल एंट्री नहीं पास करता हूं? देखो फिर से जर्नल एंट्री पास कर रहा हूं मैं, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। यहां पे परचेस अकाउंट में जो इंपैक्ट आ रहा है वही दिखा रहा हूं, मतलब मैं फिर से एक बार जर्नल एंट्री लिख रहा हूं लेकिन अलग फॉर्मेट में, यानी लेजर के फॉर्मेट में। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो लेकिन यहां पे क्या किया, यहां पे कैसा था जर्नल में, जर्नल में आपने परचेस यहां पे डेबिट किया, इमीडिएटली क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर दिया, इसलिए आपको ये डबल इफेक्ट यहां पे इमीडिएटली समझ में आया। वैसे ही लेजर पोस्टिंग करते समय परचेस के डेबिट में मैंने ये अमाउंट लिखा, यानी अभी इसको मैं टोटल में कंसिडर करूं तो मैंने सिर्फ परचेस अकाउंट को डेबिट किया है। इस लेजर पोस्टिंग को अगर मैं टोटल में कंसिडर करूं तो मैंने सिर्फ परचेस अकाउंट को डेबिट किया है। क्रेडिटर्स अकाउंट इज येट टू बी क्रेडिटेड, मींस ओनली वन इफेक्ट इज गिवन, ओनली वन इफेक्ट इज गिवन। सपोज आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट ऑन क्रेडिट साइड, सो बाय परचेसेस यहां पे जो लिखना था वो मैं भूल गया बच्चों। ध्यान दो बच्चों, मैं ये भूल गया, तो यहां पे ऐसे लिखना चाहिए था, मैंने लिखा ही नहीं, तो ये क्रेडिटर्स अकाउंट ऐसे ही रहेगा। आर यू गेटिंग इट? तो जब मैं लेजर अकाउंट्स क्लोज करूंगा तो क्या मेरा डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होगा? आंसर इज नो, बिकॉज आपने परचेस अकाउंट तो डेबिट कर लिया बट क्रेडिटर्स अकाउंट आपने क्रेडिट नहीं किया है। तो देखो बच्चों, ये एंट्री जर्नल में मैंने बराबर पास की, लेकिन लेजर पोस्टिंग करते समय मैंने एक ही अकाउंट में इफेक्ट दिया, दूसरे अकाउंट में मैंने इफेक्ट दिया ही नहीं। तो क्या होगा? ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। जर्नल बराबर लिख के भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, यस, क्योंकि जर्नल सिर्फ एक बुक है जिसमें हमें सीरियली ट्रांजैक्शन समझते हैं। वो अगर हमें क्लासिफाई करने हैं तो हमें लेजर फिर से बनाना पड़ेगा, और लेजर में भी मैं जर्नल एंट्रीज ही पास करता हूं, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो बच्चों आपको ये चीज समझ में आई? परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स किया बट क्रेडिटर्स के खाते में बाय परचेस नहीं किया, यानी क्रेडिटर्स क्रेडिट हुआ ही नहीं। ये है हमारा सिंगल साइडेड एरर। तो इनडायरेक्टली अगर मैं आपको पूछूं कि लेजर में आपने कौन सी एंट्री पास की, तो आपने सिर्फ परचेस अकाउंट को डेबिट किया 10,000 से, और इस एंट्री का कोई क्रेडिट इफेक्ट ही नहीं है। बच्चों समझ में आ रहा है क्या? तो आपने ये डबल एंट्री कंप्लीट ही नहीं किया है, और अगर डबल एंट्री कंप्लीट ही नहीं किया है तो ट्रायल बैलेंस टैली होगा क्या? आंसर इज नो। तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, एरर्स आर ऑफ टू टाइप्स, एरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। सर अभी तो ऊपर बोला था कि एरर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, सॉरी टू टाइप्स एक्चुअली, प्रिंसिपल एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड क्लरिकल एरर्स। बच्चों दैट इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एरर। नाउ आई एम क्लासिफाइंग अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है? तो एरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। वन टाइप आई एम डिस्कसिंग हियर इज सिंगल साइडेड एरर and another is two-sided error. Single-sided error means the errors in which only error is done. Single-sided error means errors which affect only one account. Errors which affect only one account.
or it is possible or more than one account or more than one account. It is also possible in this more than one account. ठीक है, errors which affect only one account or more than one account. ठीक है, and two-sided errors are those errors which affect more than one account. By two effects, either debit as well as credit. By two effects, debit as well as credit. And here in single sided error, these errors which affect only one account or more than one account, either debit और credit. बच्चों आपको समझ में आ रहा है? एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल के साथ. जैसे कि ये एरर अभी जो मैंने आपको बताया, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. परचेस अकाउंट डेबिट किया बट क्रेडिटर्स क्रेडिट नहीं हुआ, मतलब क्रेडिट इफेक्ट इज नॉट गिवन. डेबिट इफेक्ट इज गिवन, क्रेडिट इफेक्ट इज नॉट गिवन, सो ओनली क्रेडिट इफेक्ट इज रिमेनिंग. आर यू गेटिंग इट? सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ सिंगल साइडेड एरर्स, जिसमें डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हो रहा है और उसके कारण आपको एरर रेक्टिफिकेशन करना पड़ रहा है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज सिंगल साइडेड एरर. लेट्स टॉक अबाउट दिस. फर्नीचर परचेस्ड, furniture purchased recorded as expense. So what entry you should have passed? फर्नीचर अकाउंट डेबिट. वैसे तो ऊपर का क्लासिफिकेशन देखते हो तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एंट्री ये पास होनी चाहिए थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, बट आपने एंट्री क्या पास कर दी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश. ऐसी एंट्री आपने लिख दी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश. तो बच्चों ध्यान देना, यहां पे देखो एंट्री पास करते समय पोस्टिंग भी इसके हिसाब से आपने बराबर कर दिया. पोस्टिंग भी आपने एक्सपेंस के डेबिट में टू कैश लिखा, कैश के क्रेडिट में बाय एक्सपेंस लिखा, दोनों इफेक्ट्स आपने बराबर पोस्ट कर दिए. पोस्ट मतलब समझ में आ रहा है? मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना बच्चों. जर्नल जब मैं बोलता हूं तो एंट्रीज दिखाई देनी चाहिए, पोस्टिंग बोलता हूं तो लेजर अकाउंट दिखाई देने चाहिए, ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं तो ट्रायल बैलेंस दिखाई देना चाहिए. आई होप यू आर गेटिंग इट. टोटलिंग ले रहा हूं तो कहाँ का टोटल ले रहे हो, कहाँ से टोटल ले रहे हो, वो दिखना चाहिए, पूरा इमेजिनेशन होना चाहिए. एनीवे आगे बढ़ता हूं बच्चों. तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री करनी है. यहां पे देखो पोस्ट आपने एंट्री क्या कर दी? एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो आपने पोस्टिंग करते समय भी एक्सपेंस के डेबिट में टू कैश लिखा, इज इट राइट? एंड कैश के क्रेडिट में बाय एक्सपेंस, यानी पोस्टिंग भी बराबर हो गया, जर्नल भी बराबर हो गया, पोस्टिंग भी बराबर हो गया, डेबिट हुआ जितना अमाउंट उतना ही बराबर अमाउंट क्रेडिट हुआ. तो ये एरर है कि नहीं? एक्चुअली एंट्री क्या होनी चाहिए थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, बट आपने गलती से एक्सपेंस अकाउंट डेबिट किया, यानी जहां पे फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था वहां पे एक्सपेंस अकाउंट आपने डेबिट कर दिया. ये गलती सिंगल साइडेड है या डबल साइडेड, ये मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं. तो आपका आंसर आएगा डबल साइडेड, बिकॉज दोनों अकाउंट्स पे इंपैक्ट हो रहा है, बराबर है ना? एक्सपेंस अकाउंट एज वेल एज फर्नीचर अकाउंट, दोनों का बैलेंस गलत आया. एक्सपेंस गलत दिख रहा है एज वेल एज फर्नीचर जो दिखना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है. कैश में कोई इफेक्ट ही नहीं है क्योंकि कैश वैसे भी क्रेडिट होने वाला था. आर यू गेटिंग इट? तो जिस रेक्टिफिकेशन एंट्री में डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है उस रेक्टिफिकेशन एंट्री को, नहीं तो जिस गलती के कारण एक अकाउंट डेबिट करना पड़ता है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट करना पड़ता है, मोर देन टू अकाउंट्स ही होंगे इस एंट्री में, 100% मोर देन टू अकाउंट्स ही होंगे, एक अकाउंट होने का चांस बहुत ही कम है. ठीक है, सिंगल साइडेड एरर में क्या होता है? एक अकाउंट पे नहीं तो दो अकाउंट पे इंपैक्ट हो सकता है, लेकिन दोनों के दोनों क्रेडिट होंगे, नहीं तो दोनों के दोनों डेबिट होंगे, डेबिट क्रेडिट का टोटल मैच नहीं होगा. आई होप यू आर गेटिंग द वर्ड्स वन साइडेड एरर एंड डबल साइडेड एरर. गलती सिर्फ एक ही अकाउंट में हो रही है, एक ही इफेक्ट में हो रही है, डेबिट इफेक्ट में हो रही है, नहीं तो और बोल रहा हूं, और यहां पे मैंने लिखते समय क्या लिखा? और क्रेडिट में हो रही है. गलती अगर डेबिट में हो रही है नहीं तो क्रेडिट में हो रही है तो उसको हम सिंगल साइडेड एरर बोलेंगे.
लेकिन गलती डेबिट में एज वेल एज क्रेडिट में सेम अमाउंट से हो रही है, तो हम उसको टू साइडेड एरर बोलेंगे। आई होप यू आर गेटिंग माई वर्ड्स। ठीक है बच्चों, तो ये क्लासिफिकेशन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली आप रेक्टिफिकेशन क्या करना चाहोगे ये डिसाइड होता है। जैसे कि ये केस जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, जर्नल एंट्री बराबर पास की, यस। उसके बाद लेजर पोस्टिंग आपने करना शुरू किया, परचेस अकाउंट के डेबिट में टू क्रेडिटर्स लिखा 10,000 रुपए। अब क्रेडिटर्स के क्रेडिट में बाय परचेसेस लिखना आप भूल गए। अब इस गलती को कैसे सुधारोगे बच्चों, ध्यान देना, इस गलती को कैसे सुधारोगे। क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट में बाय परचेसेस लिखना भूल गया। ध्यान दो बच्चों, इस गलती को कैसे सुधारोगे, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से पॉइंट पे रेक्टिफिकेशन कर रहे हो। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से पॉइंट पे रेक्टिफिकेशन कर रहे हो। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो बच्चों, पूरा प्रोसेस समझ लो, पूरा प्रोसेस समझ लो। पहले हम क्या बनाते हैं? जर्नल। फिर हम क्या बनाते हैं? लेजर। फिर हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। बराबर है। और ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग। इज इट राइट? यस। नाउ बच्चों ध्यान दो, ट्रायल बैलेंस अगर टैली हुआ तो हम आगे बढ़ते हैं, पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो हम लोग क्या करते हैं? लेजर लोकेट करने का ट्राई करते हैं, सॉरी, एरर लोकेट करने का ट्राई करते हैं, यानी एरर ढूंढना शुरू करते हैं। बहुत सारा, मतलब सब ढूंढ के देख लिया मैंने, कुछ भी, मतलब मेरे को एरर ही डिटेक्ट नहीं हो रहा है। पूरे सभी लेजर अकाउंट्स मैंने छान मारे, लेकिन एरर डिटेक्ट नहीं हो रहा है। उस केस में क्या आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पेंडिंग रखोगे? आंसर इज नो। वो जो डिफरेंस ट्रायल बैलेंस में आ रहा है उसको मैं कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करके मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाऊंगा। ठीक है बच्चों, आपको यही ट्रीटमेंट आगे बताया गया है। तो एरर आपकी मे बी नेक्स्ट ईयर में लोकेट हो सकती है, नहीं तो उसके नेक्स्ट ईयर में लोकेट हो सकती है। आर यू गेटिंग इट? तीसरे साल में लोकेट हो सकती है, एरर कभी भी लोकेट हो सकता है। देखो, अकाउंटिंग इज अ मैजिक ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ड्यूअल एस्पेक्ट। तो कभी ना कभी तो वो एरर 100% आइडेंटिफाई हो जाएगा, और उस वक्त आपको वो रेक्टिफाई करना पड़ेगा। यानी अगर 3 साल के बाद अगर पिछला एरर है कुछ, तो वो मुझे 3 साल के बाद अगर डिटेक्ट होता है तो 3 साल के बाद मुझे रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप एरर कौन सी जगह पे रेक्टिफाई कर रहे हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंट्री पास करने के लिए। तो ऐसे 3 पॉइंट्स होते हैं जहां पे आपके एरर डिटेक्ट होते हैं। पहला पॉइंट है बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, यानी लेजर आपके पूरे कंप्लीटेड है, ट्रायल बैलेंस आप बनाने वाले हो, लेकिन उसके पहले आपको एरर डिटेक्ट हुआ, उसके पहले आपको एरर डिटेक्ट हुआ। तो बच्चों क्या करोगे आप लोग? कुछ नहीं, ट्रायल बैलेंस अभी तक बनाया ही नहीं है, एरर डिटेक्ट है, एरर सामने है मेरे, तो मैं उस एरर को सुधार के ही ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा ना। आई होप यू आर गेटिंग माई डिस्कशन। एरर को सुधारेंगे और ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, या ट्रायल बैलेंस बना के फिर से एरर को सुधारोगे? बच्चों समझ लो, ट्रायल बैलेंस अभी तक बना नहीं है, लेजर अकाउंट में जाओ, जो कुछ भी रिक्वायर्ड इफेक्ट है वो दे दो। उस केस में इस एरर को मैं कैसे सुधारूंगा? इस एरर को कैसे सुधारूंगा? क्रेडिटर्स अकाउंट में भी क्लोज हुआ होगा, समझ में आ रहा है बच्चों? ये क्रेडिटर्स में बाकी के ट्रांजैक्शन की टोटल समझो 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है, और मैंने यहाँ पे ऐसा बैलेंस लिखा है, इस साइड में आएगा बैलेंस क्रेडिटर का है, टू बैलेंस कैरेट डाउन 10,000। ये लेजर मैंने क्लोज किया था बच्चों, 1 लाख रुपए, सॉरी 1 लाख रुपए समझ लो बैलेंस है। ये 10 लाख टोटल है, 9 लाख का पेमेंट हो चुका है, 1 लाख रुपए का बैलेंस है, ऐसे समझ लो। टू बैलेंस कैरिड डाउन, ऐसा मेरा क्रेडिटर्स का पोजीशन है। अभी तक ट्रायल बैलेंस मैंने प्रिपेयर नहीं किया है, बट मुझे पता चला कि अरे क्रेडिटर्स में एक इफेक्ट रह गया है, क्रेडिटर्स में एक इफेक्ट रह गया है। तो अभी क्या करूंगा? फिर से इस क्रेडिटर अकाउंट को खोलूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, 1 लाख रुपए कंटिन्यू करूंगा, और वो एरर पहले रेक्टिफाई करूंगा। अब एरर क्या है यहाँ पे, सिंगल साइडेड है या डबल साइडेड? परचेस में इफेक्ट बराबर गया था, तो परचेस को हाथ लगाने का नहीं। आर यू गेटिंग इट? परचेस को हाथ लगाने का नहीं, सिर्फ क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट होना रह गया था,
तो क्रेडिटर के खाते को सिर्फ 10,000 से बढ़ाना है। आई होप यू आर गेटिंग इट। क्रेडिटर को क्रेडिट करना है, तो क्रेडिटर को क्रेडिट करना है मतलब नंबर यहां पे आना चाहिए। अब यहां पे लिखूं क्या मैं? बाय परचेस लिख दो, चलता है। नहीं तो बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर लिख दो, चलता है। बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर लिखो, बाय परचेस लिखो, बाय घे बरोबर लिखो। समझ में आ रहा है क्या? कुछ भी लिखो, आपको जो मर्जी है वो लिखो यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका कोई दूसरा इफेक्ट नहीं देने वाला हूं मैं, क्योंकि दूसरा इफेक्ट ऑलरेडी मैंने दिया है। सिर्फ क्रेडिट का इफेक्ट नहीं दिया है बच्चों, सिर्फ क्रेडिट का इफेक्ट नहीं दिया है। आर यू गेटिंग इट? तो सिर्फ क्रेडिट का इफेक्ट नहीं दिया है तो क्रेडिट का इफेक्ट दे दो ना, दूसरा फिर से कोई इफेक्ट नहीं देना है। नहीं तो यहां पे समझो मैंने लिख दिया बाय परचेस, तो आपको आदत होती है बच्चों, समझना है आपको। आपको आदत क्या होती है? क्रेडिटर के क्रेडिट साइड में बाय परचेस लिखा, तो परचेस के डेबिट में फिर से जाके क्रेडिटर्स 10,000 लिखोगे आप। अरे नलायक को, ऑलरेडी आपने ये इफेक्ट दिया है, फिर से देने की जरूरत नहीं, वो रह गया था इसलिए वो पार्शियल इफेक्ट मैंने दिया। तो वहां पे बाय रेक्टिफिकेशन लिखो, बाय परचेस लिखो, इट डजेंट मैटर। इंस्टीट्यूट तो लिखता ही है वहां पे बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब ये नहीं है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नाम का एक खाता फिर से खोल के उसमें सब इफेक्ट्स दिए जाए। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया है। आई कैन राइट एनीथिंग, आई कैन राइट एनीथिंग। इसको, ये कुछ भी लिखने का जो लॉजिक है ना, वो आपको नेक्स्ट मेथड में 100% समझ में आएगा। ठीक है बच्चों? तो ये हुआ हमारा ये सिचुएशन बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। लेजर अकाउंट्स आर नॉट येट क्लोज्ड फुल्ली। Why? Because I have not prepared trial balance yet. So there is a scope that I can rectify this error in ledger itself. There is a scope that I can rectify this error in a ledger itself. जर्नल में गलती है तो जर्नल भी अभी तक क्लोज नहीं हुआ है, जर्नल में आप एंट्री पास कर सकते हो। कोई एरर ऑफ ओमिशन है समझो, आपने पूरी की पूरी एंट्री रिकॉर्ड नहीं की, जाओ जर्नल में एंट्री पास करो, लेजर में उसका पोस्टिंग करो, लेजर फिर से क्लोज करो और ट्रायल बैलेंस बनाओ। अगर आपका एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले डिटेक्ट होता है तो आपका दूसरी कैटेगरी आपके सिलेबस में जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की, दैट इज आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट। मतलब एरर डिटेक्ट कब हुआ? एरर डिटेक्शन इज आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाया, टैली नहीं हुआ, टैली हुआ, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद एरर डिटेक्ट हुआ, लेकिन अभी तक मैंने P&L एंड बैलेंस शीट नहीं बनाए हैं, तो उस वक्त इसी एरर को अलग तरीके से रिकॉर्ड करना पड़ता है। एक एक करके हम पढ़ेंगे, तीनों ही पढ़ने हमें। और तीसरा सिचुएशन है आफ्टर प्रिपेयरिंग P&L एंड बैलेंस शीट, दैट इज इन नेक्स्ट ईयर, दैट इज इन नेक्स्ट ईयर और ईयर्स, दैट इज इन नेक्स्ट ईयर और ईयर्स। मतलब बच्चों एरर रेक्टिफाई, एरर आइडेंटिफाई कब हुआ? आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स। तो P&L एंड बैलेंस शीट मैंने बनाया, आगे गया मैं नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि पिछले साल में देखो बच्चों, मैं ट्राई करूंगा एरर ढूंढने का, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एरर मुझे मिल जाए। लेकिन बहुत सारी कोशिश करने के बावजूद भी अगर आपको एरर नहीं मिल रहा है तो आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसके लिए नहीं रोकोगे, वो डिफरेंस कहीं पे सस्पेंस अकाउंट में लिख के आगे बढ़ोगे। तो ये सस्पेंस अकाउंट की कहानी क्या है, ये हम सेकेंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले ये फर्स्ट पार्ट हम समझ लेते हैं, फिर सेकेंड पार्ट और फिर थर्ड पार्ट के बारे में बात करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो बच्चों, ये है हमारा पूरा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स टॉपिक, जो आज मैंने पूरा आपके सामने ओपन किया है। बट अभी भी आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हम इसी डायरेक्शन में जाएंगे। तो मैंने क्या क्या डिस्कस किया बोलो बच्चों? एरर बेसिकली इन टाइप्स में होती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल यानी कंसेप्ट का लोचा, केमिकल लोचा, नहीं तो क्लिरिकल एरर, लिखने में कोई गलती हुई है। उसको फर्दर क्लासिफाई किया, एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब आप एंट्री लिखना भूल जाते हो, फुल्ली नहीं तो पार्शियली। ये जो अभी मैंने एग्जांपल डिस्कस किया था, क्रेडिटर्स में इफेक्ट देना भूल गए हम लोग, ये पार्शियल ओमिशन था। अगर परचेस में भी इफेक्ट नहीं देते तो ये फुल ओमिशन था। लेकिन समझ लो बच्चों, फुल ओमिशन जब होता है तो परचेस भी डेबिट नहीं हो रहा है, क्रेडिटर्स भी क्रेडिट नहीं हो रहा है। जितने का अमाउंट डेबिट होना चाहिए था, यानी 10,000 का अमाउंट डेबिट होना चाहिए था, उतना ही अमाउंट क्रेडिट नहीं हो पाया, यानी 10,000 का इफेक्ट डेबिट में भी गया, क्रेडिट में भी गया।
इसका मतलब ये टू साइडेड एरर है, दो जगह पे एरर होगा, परचेस अकाउंट में भी एरर हुआ, क्रेडिटर्स अकाउंट में भी एरर हुआ, एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट दोनों में गलती है, तो उस एरर को हम क्या बोलेंगे, टू साइडेड एरर। दूसरा, ये जो मैंने केस यहाँ पे डिस्कस किया, परचेस के डेबिट में आपने जाके लिखा टू क्रेडिटर्स, बट क्रेडिटर्स के क्रेडिट में बाय परचेस लिखना भूल गए, यानी डेबिट कर दिया आपने 10,000 रुपए, लेकिन क्रेडिट करना आप भूल गए, यानी डेबिट क्रेडिट की टोटल जब मैच नहीं होती है तो उस टाइप ऑफ एरर को हम क्या बोलेंगे, सिंगल साइडेड एरर। डेबिट साइड को सिर्फ सॉरी क्रेडिट साइड को सिर्फ एरर है, डेबिट इज राइट, डेबिट इज राइट, when debit as well as credit is wrong, when debit as well as credit is wrong, that you debit as well as credit is wrong, you will be calling that error as a two sided errors. When if error is in only one side, then that will be called as single sided error. ठीक है, एक से ज्यादा अकाउंट भी हो सकते हैं सिंगल साइडेड एरर में, एक से ज्यादा अकाउंट्स भी हो सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सिंगल साइडेड एरर में एक से ज्यादा अकाउंट भी हो सकते हैं, जैसे कि परचेस किया आपने, एग्जांपल देता हूं, नहीं तो बात करेंगे आगे, मेरे आगे के एग्जांपल में ये एग्जांपल मैंने कवर अप किया है। ठीक है बच्चों, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव अहेड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो बच्चों फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू एरर में बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दोज एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। यहां से हमने शुरू किया था डिस्कशन। तो बच्चों ऐसे कौन से एरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, सारे सिंगल साइडेड एरर्स, सारे सिंगल साइडेड एरर्स, सिंगल साइडेड एरर्स affect the trial balance. Two sided error do not affect the trial balance, means सिर्फ डेबिट इफेक्ट दिया, क्रेडिट इफेक्ट दिया ही नहीं, तो ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट होगा ही कि नहीं, अरे बोलो ना, होगा ही ना। यस, जैसे कि रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स। अब सब्सिडरी बुक यानी परचेज बुक की बात करेंगे, परचेज बुक का टोटल आपने गलत लिया, परचेज बुक में एंट्री करने के बाद, परचेज बुक में एंट्री करने के बाद आप इमीडिएटली लेजर पोस्टिंग भी करते हो क्रेडिटर्स के खाते में, क्रेडिटर्स को क्रेडिट बराबर किया, लेकिन परचेस का टोटल आपने गलत लिया और वही टोटल आप परचेस के लेजर में पोस्ट करते हो। मैं क्या बोल रहा हूं, दिमाग में घुस रहा है क्या? वही टोटल आप परचेस के लेजर में, लेजर दिखाई दिया, परचेस के लेजर में डेबिट साइड को क्या लिखते हो, टू टोटल एज पर सब्सिडरी बुक। टोटल आना चाहिए था 10 लाख रुपए, आपने टोटल लिया 11 लाख, तो वहां पे परचेस डेबिट होगा 11 लाख से, लेकिन क्रेडिटर्स क्रेडिट होंगे 10 लाख से ही। आर यू गेटिंग इट? तो ये डेबिट हो रहा है 1 लाख से एक्स्ट्रा, उसका क्रेडिट ही नहीं आया, सिंगल साइडेड एरर, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए। अभी मैं आपको फिलहाल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये एग्जांपल्स अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस में हम कवर करने वाले हैं, उसके बाद आप एक बार हम लोग यहाँ पे आके पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे समझना क्या है, कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट करते हैं, यानी ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं होता है, एंड कुछ एरर्स ऐसे होते हैं कि वो ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट ही नहीं करते क्योंकि वो दोनों जगह पे हो रहा है, डेबिट में भी हो रहा है, क्रेडिट में भी हो रहा है। error of omission, mostly full omission, partial omission is again affecting on the trial balance, but error of omission, full omission do not have any effect on the trial balance. Is it clear to you? Yes, तो उसके भी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं, वो भी हम बात करेंगे बाद में, और ये चार्ट भी हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। पहले हम थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं और उसके बाद ये सब चीजें फिर से रिपीट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे एक पैराग्राफ मैंने नोट्स में दिया है, स्टेप्स टू लोकेट द एरर, लेकिन पहले एरर्स को पूरा मतलब पूरा पूरा 100% तरीके से समझ लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि एरर डिटेक्ट कैसे करना होता है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है बच्चों, देखने मतलब यहाँ पे कुछ ट्रिक्स आपको बताए गए। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है। एक तो सिंपल मेथड बताऊं क्या एरर कैसे डिटेक्ट करने, पूरा अकाउंट्स आपको छान मारना पड़ेगा, क्या क्या किया, हर लेजर अकाउंट आपको ओपन करके देखना पड़ेगा। लेकिन क्या हर लेजर ओपन करने के पहले कुछ ट्रिक्स ऐसे है क्या जो मुझे हेल्प कर सके? तो हाँ है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन पहले हमें रेक्टिफिकेशन कैसे करना है वो समझना है, उसके बाद ये डिस्कशन 5 मिनट का है। ठीक है, फाइन। तो बच्चों आ जाओ इस पॉइंट पे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। एरर मतलब क्या समझ में आया? तो एरर मतलब क्या बच्चों, देखो सिंपल है, मैंने अभी आपको क्या क्या बताया, एरर्स के आपको क्लासिफिकेशन बताया, अलग अलग तरीके से मैंने एरर को क्लासिफाई किया। जैसे कि हमारी जो क्लासरूम है उसमें अगर 50 बच्चे हैं, ठीक है, तो 50 बच्चों को अगर मैं क्लासिफाई करना चाहूं तो कौन से बेसिस में यूज कर सकता हूं, समझ लो बात को। हाइट के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकता हूं, यानी कुछ लोगों का हाइट 6 फीट है और कुछ लोगों का 5.5 है, तो 5.5 वाले बच्चे अलग, बच्चे तो 50 ही है तो 5.5 वाले अलग,
एंड 6 फीट वाले अलग। ये क्लासिफिकेशन हुआ। इन्हीं 50 बच्चों को, ध्यान दो बच्चों, इन्हीं 50 बच्चों को मैं टैलेंट के हिसाब से क्लासिफाई कर सकता हूं कि नहीं? जैसे कि होशियार बच्चे, अति होशियार बच्चे, समझ में आ रहा है क्या? तो ये क्लासिफिकेशन अलग हुआ। बच्चे तो वही है ना, लेकिन मैं क्लासिफिकेशन के लिए क्राइटेरियाज अलग अलग लगा रहा हूं। इन्हीं 50 बच्चों को मैं लेट कमिंग बच्चे, टाइम पे आने वाले बच्चे, ऐसे क्लासिफाई कर सकता हूं, है कि नहीं? यस। तो देखो बच्चों, मैं अलग अलग क्राइटेरियाज लगा रहा हूं। बच्चे तो 50 ही है। अभी उसी कॉन्टेक्स्ट में समझ लो, एरर्स तो एरर्स ही है, लेकिन जब मैं एरर्स अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफाई करना चाहूं, तो कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो कंसेप्ट में प्रॉब्लम होने के कारण होते हैं, जैसे कि एरर ऑफ प्रिंसिपल। एंड जो एरर्स लिखने में गलती होने के कारण होते हैं उसे क्लिरिकल एरर्स बोलते हैं। और क्लिरिकल एरर्स का फर्दर क्लासिफिकेशन मैंने दिया है। अब इन्हीं एरर्स को मैं ऐसे भी क्लासिफाई कर सकता हूं ना, कुछ एरर्स ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट करेंगे, कुछ एरर्स ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट नहीं करेंगे। लेकिन वो कैसे जानना है कि ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट होगा या नहीं होगा? उसके लिए आपको समझना है कि कुछ एरर्स सिर्फ एक साइड पे इंपैक्ट करते हैं, दूसरा साइड उनका बराबर होता है। देखो बच्चों, दो ही साइड होते हैं, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, ऐसे दो साइड होते हैं। डेबिट में ही गलती की है, क्रेडिट बराबर है, तो उसको हम सिंगल साइडेड एरर बोलेंगे। उसमें चाहे एक अकाउंट हो या दो अकाउंट हो या तीन अकाउंट, क्रेडिट में ही गलती हुआ है, आर यू गेटिंग इट? डेबिट बराबर है, उसको भी हम सिंगल साइडेड एरर बोलेंगे। यानी गलती सिर्फ एक साइड में इफेक्ट हुआ है, तो हम उसको सिंगल साइडेड एरर बोलेंगे। और यही एरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस की ऑब्वियसली बच्चों क्रेडिट का इफेक्ट नहीं दिया तो ट्रायल बैलेंस टैली कैसे होगा? इज इट क्लियर टू यू? यस। नाउ आगे बढ़ता हूं बच्चों। ऐसे भी कुछ एरर्स होते हैं जो डेबिट में जितने की गलती की है ना, उतने की एग्जैक्टली गलती क्रेडिट में भी करते हैं, उसको हम डबल साइडेड एरर बोलते हैं। आर यू गेटिंग इट? यस। तो एरर शुड नेवर बी करेक्टेड बाय ओवरराइटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया, मतलब ये अलग अलग नहीं है, उन्हीं एरर्स को मैं अलग अलग क्राइटेरिया लगा के क्लासिफाई कर रहा था। ठीक है बच्चों? हाँ, तो विद दिस वी विल मूव अहेड। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, एरर शुड नेवर बी करेक्टेड बाय ओवरराइटिंग, यानी ऐसा नहीं चलेगा बच्चों। समझो लेजर में आपने ऑलरेडी पोस्टिंग कर दिया है, 2 क्रेडिटर्स, 1,00,000 रुपए, परचेस था 10,000 का, लेकिन आपने लिखा 1,00,000। यहाँ पे ही ऐसे काट के 10,000 नहीं लिखना है जो आपके बुक में जनरली दिखाई देता है, ओवर राइटिंग नहीं करना है। ठीक है? इफ इमीडिएटली आफ्टर मेकिंग एन एंट्री इट इज क्लियर दैट एरर हैज बीन कमिटेड। समझो मैं एंट्री लिख रहा हूं, लेजर वगैरह अभी क्लोज नहीं किया है, एंट्री लिखते समय ही मैंने अगर 2 क्रेडिटर्स 1,00,000 लिखा गलती से, और उसी वक्त मेरे को पता चला कि अरे 10,000 था 1,00,000 लिखा, तो मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे मैंने 1,00,000 लिखा है ना, उसको ऐसे कट करना है और नीचे उसके लिखना है 2 क्रेडिटर्स 10,000। ये चलता है बच्चों। इट मे बी करेक्टेड बाय नीटली क्रॉसिंग आउट द रॉन्ग एंट्री एंड मेकिंग द करेक्ट एंट्री। ये नीटली मतलब दिखना चाहिए ऐसे। जब आप ऑडिट को जाओगे और ऐसे आपको ओवर राइटिंग वाले अकाउंट्स मिलेंगे, तो आप हाथ भी नहीं लगाओगे, बोलोगे क्या ला के दिए मेरे सामने, ये नालायक, जा सब ठीक करके ला, ऐसे आप वो बुक फेंक दोगे। इज इट क्लियर टू यू? ओवर राइटिंग इज नॉट परमिटेड। हाँ, ऑफ कोर्स दिस ओवर राइटिंग विल कम if the accounts are prepared on the manual basis. If accounts are computerized, then delete option is also not available in your system. Believe me guys, जब आप फ्यूचर में कभी जाओगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, except for few softwares, delete option is also not given to the employees because employees can do whatever they want to do. समझ में आ रहा है क्या? So if they pass a wrong entry, they have to rectify it by passing a correct entry only. उस एंट्री के इफेक्ट्स उल्टे फुल्टे करके ही उसको करेक्ट करना पड़ता है उसको। आर यू गेटिंग इट? तो रॉन्ग एंट्री पास नहीं करने हैं, और अगर करते हो तो उसको ऐसे ओवर राइटिंग से रेक्टिफाई नहीं करना है, उसके लिए हम करेक्ट एंट्री पास करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? एंड दैट करेक्ट एंट्री इज कॉल्ड एज अ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इज इट क्लियर? इफ हाउएवर एरर्स आर लोकेटेड आफ्टर सम टाइम, मतलब अगर उसी वक्त आपको कुछ गलती पता चलती है अकाउंट्स लिखते समय ही, तो आप ऐसा नीटली क्रॉस करके आप वहां पे रेक्टिफाई कर सकते हो। मैनुअल अकाउंट्स यानी जैसे आप भी बुक्स में लिखते हो वैसे ही अकाउंट्स बना रहे हो, तो ये होगा। कंप्यूटराइज सिस्टम में ऐसा कुछ नीटली वगैरह क्रॉस करके नहीं लिखना है, वो एंट्री आपको रिवर्स ही करनी पड़ती है। आई होप यू आर गेटिंग इट। बट राइट नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग कंप्यूटराइज सिस्टम, वी आर डिस्कसिंग मैनुअल अकाउंट्स। पहले ये आने चाहिए, फिर हम कंप्यूटर पे ऑटोमेटिकली काम करना शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों? एनीवे, कंप्यूटर का पार्ट छोड़ दो, मैनुअल अकाउंट ही लिख रहे हैं।
कुछ गलती करते हो तो ऐसे मस्त काटो, उसको नीटली क्रॉस करना है और उसके नीचे ही, नहीं तो जहां जो कुछ भी करेक्ट इफेक्ट है वो आपको देना है, ठीक है। इफ हाउएवर एरर्स आर लोकेटेड आफ्टर सम टाइम, मैंने अकाउंट्स लिखे, उसके बाद के ट्रांजेक्शंस भी आ गए उसमें, लेजर अकाउंट क्लोज किए, ट्रायल बैलेंस बनाते समय मेरे को एरर पता चला, समझ में आ रहा है क्या? द करेक्शन शुड बी मेड बाय मेकिंग अनदर सुटेबल एंट्री, वही एंट्री सीखना है हमें, दैट इज कॉल्ड एज अ रेक्टिफिकेशन एंट्री, और ये रेक्टिफिकेशन एंट्री करना हमें सीखना है। इज इट राइट बच्चों? आगे बढ़ता हूं। इन फैक्ट द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर डिपेंड्स ऑन एट विच स्टेज इट इज डिटेक्टेड। डिस्कस किया है मैंने अभी 5 मिनट पहले, कौन से स्टेज पे आपका एरर डिटेक्ट हो रहा है उसके ऊपर आपकी एंट्री डिपेंडेंट है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स डिपेंड्स ऑन, मार्क दिस लाइन एज इंपॉर्टेंट वन। So what are the stages where we can detect the error? You can detect the error before preparation of trial balance, after trial balance but before final accounts are drawn, and after final accounts, that is in the next period of accounting, you detect the error. You detect error in any of these 3 periods. समझ में आ रहा है बच्चों? And accordingly you have to pass the rectification entry. So how to deal with these 3 situations? देखो ये बच्चों तीनों सिचुएशन हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पहले फेज में हम बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करना है वो देखेंगे। सेकेंड सेशन में, मतलब हमारे अगले लेक्चर्स एक एक करके आएंगे, उसमें आप दूसरा पार्ट भी देखने वाले हो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। एंड तीसरा पार्ट कौन सा पढ़ोगे आप लोग? आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स इन द नेक्स्ट ईयर इफ एरर इज लोकेटेड, हाउ टू डील विद दैट। तो तीनों सिचुएशंस अलग अलग है, तीनों सिचुएशन को अलग अलग से पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सिचुएशन, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसके लिए आपको वन साइडेड एरर का एंड टू साइडेड एरर का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। देर आर सम एरर्स विच अफेक्ट वन साइड ऑफ एन अकाउंट, वन साइड ऑफ एन अकाउंट, यहां पे आप लिख सकते हो डेबिट नहीं तो क्रेडिट। और का मतलब समझ में आता है कि नहीं रे? और यानी आइदर डेबिट नहीं तो क्रेडिट, ठीक है। इसको हम वन साइडेड एरर बोलते हैं, जो सिर्फ डेबिट पे इंपैक्ट कर रहा है नहीं तो क्रेडिट पे इंपैक्ट कर रहा है। Or which affect more than one account in such a way that it is not possible to pass a complete rectification entry. ठीक है बच्चों? There are some errors which affect one side of an account or affect more than one account but debit only in such a way that it is not possible to complete rectification entry. Rectification entry आप complete कर ही नहीं सकते हो। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल दिया ना अभी, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, लेजर पोस्टिंग करते समय परचेस के डेबिट में लिखा टू क्रेडिटर्स 10,000, यानी परचेस डेबिट हुआ, परचेस डेबिट हो चुका है, बट क्रेडिटर्स में आप कुछ लिखते ही नहीं हो। और मैं आपको बोलता हूं कि एंट्री पास करो, एंट्री पास करो मतलब मेरे दिमाग में पहला लेक्चर आ जाएगा जिसमें मैंने आपको डबल एंट्री सिस्टम समझाया था। आपने क्या बोला था? एंट्री में हमेशा डेबिट क्रेडिट मैच होना चाहिए। लेकिन बच्चों इसके बारे में सोचो ना, इसमें सिर्फ क्रेडिटर्स क्रेडिट होना रह गया है, तो टू क्रेडिटर्स 10,000 लिखना है। आर यू गेटिंग इट? डेबिट कौन सा लिखूं? परचेस लिखूं? नहीं, क्यों? क्योंकि परचेस ऑलरेडी डेबिट हुआ है। आर यू गेटिंग इट? तो यहां पे प्रॉब्लम हो रही है, यहां पे मैं एंट्री पास नहीं कर पा रहा हूं, तो इसको ऐसे ही रेक्टिफाई करना है। अभी आपने कौन से स्टेज पे रेक्टिफाई कर रहे हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कौन से स्टेज पे रेक्टिफाई कर रहे हो? आई हैव नॉट येट प्रिपेयर्ड अ ट्रायल बैलेंस, सो गो टू द क्रेडिटर्स लेजर, राइट डाउन देयर बाय रेक्टिफिकेशन, और यू कैन राइट हियर बाय परचेसेस। इट डजंट मैटर बच्चों, इट डजंट मैटर। कुछ लोग बोल रहे सर सस्पेंस लिखो तो चलेगा क्या? अभी नहीं बच्चों, नेक्स्ट मेथड में आता है, कंसेप्ट के साथ बताऊंगा, नेक्स्ट मेथड में आएगा, कंसेप्ट के साथ बताऊंगा। अभी फिलहाल आप उसी लेजर में जाओगे और उसके लेजर में बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स लिखोगे 10,000, यानी क्रेडिटर को क्रेडिट करना था उतना काम मैंने कर दिया। ये है सिंगल साइडेड एरर। आई होप यू आर गेटिंग इट। हाँ, ऐसे भी हो सकता है, ध्यान दो बच्चों। एक से ज्यादा अकाउंट मतलब क्या? देखो बच्चों, परचेस किया 10,000 रुपए का, लेकिन एंट्री कर दी सेल्स बुक में, सेल्स बुक में, ठीक है। तो देखो बच्चों, परचेस डेबिट होना चाहिए था, परचेस बुक बनाता हूं
और यहाँ पे सेल्स बुक भी बनाता हूँ। मिस्टर एक्स के पास से मैंने 10,000 के गुड्स खरीदे, आपने गलती से सेल्स बुक में मिस्टर एक्स लिखा 10,000, और इसके बाद आप क्या करोगे, सेल्स का एक लेजर बनाओगे, लेजर अकाउंट, एंड मिस्टर एक्स का भी एक लेजर अकाउंट बनाओगे, बराबर है ना बच्चों। मिस्टर एक्स के डेबिट में लिखोगे टू सेल्स 10,000, और सेल्स के क्रेडिट में लिखोगे बाय टोटल एज पर सब्सिडरी बुक 10,000। यानी ये डेबिट क्रेडिट मैच हो गया, एंट्री बराबर है, ट्रायल बैलेंस भी टैली होगा, सब लोग खुश है, अकाउंटिंग बराबर है। लेकिन बाद में पता चला अरे मिस्टर एक्स के पास से तो गुड्स खरीदे थे हमने, उसको गुड्स बेचे ही नहीं है, उसको गुड्स, उसके पास से गुड्स खरीदे। यानी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एंट्री होनी चाहिए थी परचेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, बराबर है क्या बच्चों। ध्यान देना बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, 10,000 10,000, आपने एंट्री क्या की, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बच्चों ध्यान देना, 10,000 10,000, पेशेंस नहीं छोड़ना है इस टॉपिक का। ये टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा जब आपको जर्नल एंट्रीज बनाना आता है। इज इट राइट, आपने ये एंट्री कर दी, नालायक हो आप, ये एंट्री करनी थी, इज इट राइट। हाँ तो ध्यान देना, अभी क्या क्या इफेक्ट्स हो गए देखो, मिस्टर एक्स क्रेडिट होना चाहिए था लेकिन आपने वो डेबिट ही कर दिया, मिस्टर एक्स क्रेडिट होना चाहिए था लेकिन आपने वो डेबिट कर दिया। ठीक है बच्चों, यानी मिस्टर एक्स के खाते में डेबिट इफेक्ट है 10,000 का, उसको बाय द वे क्रेडिट करना है आपको 10,000 से, यानी उसके पास उसको पैसे देने हैं। आप अभी कैसे दिखा रहे हो, उसके पास से 10,000 आने हैं ऐसे दिखा रहे हो। सेल्स क्रेडिट होने का क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए, सेल्स क्रेडिट होने का क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए। आर यू गेटिंग इट। तो बच्चों सेल्स भी क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, एंड परचेस डेबिट होना चाहिए था बच्चों, परचेस डेबिट होना चाहिए था। तो अभी क्या हो रहा है जरा देखो, ध्यान दो, सेल्स डेबिट होगा 10,000 से, क्रेडिट किया ना आपने सेल्स को, ये होना ही नहीं चाहिए था, तो ये क्रेडिट इफेक्ट हटाना है तो आपको सेल्स को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। परचेस को भी डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि परचेस एक्चुअल में डेबिट होना चाहिए था। ये देखो 10,000 रुपए परचेस एक्चुअल में डेबिट होना चाहिए था, और मिस्टर एक्स का ये डेबिट हटाने के लिए, मिस्टर एक्स का ये डेबिट हटाने के लिए मिस्टर एक्स को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जब आप मिस्टर एक्स को एक बार क्रेडिट करोगे तो मिस्टर एक्स 20,000 रुपये 10,000 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट। ये हट गया मिस्टर एक्स का रॉन्ग इफेक्ट, और उसके बाद सही में एक बार मिस्टर एक्स को क्रेडिट करना है तो फिर से मिस्टर एक्स को क्रेडिट करना पड़ेगा 10,000 रुपए। आर यू गेटिंग इट। ये जो एरर मैं डिस्कस कर रहा हूं ये डबल साइडेड एरर है। आर यू गेटिंग इट, क्योंकि इसमें पूरी जर्नल एंट्री तैयार हो रही है। देखो मिस्टर एक्स को मैं क्रेडिट करूंगा 20,000 से, आई होप यू आर गेटिंग इट, मिस्टर एक्स को क्रेडिट करूंगा 20,000 रुपए से, यहाँ पे पूरी जर्नल एंट्री तैयार हो रही है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसे भी आएंगे कि जिसमें दो अकाउंट्स, दो से ज्यादा, एक से ज्यादा अकाउंट आएंगे लेकिन पूरी एंट्री आप कर नहीं पा रहे हो, तो उस केस में प्रॉब्लम होती है। उस केस में आपको सिर्फ सिंगल साइडेड एरर इफेक्ट देके रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो बच्चों हम क्या करते हैं, एक बार सभी एग्जांपल्स देखते हैं और उसमें से हम चूज पिक करेंगे कि ये सिंगल साइडेड एरर है या डबल साइडेड, और अकॉर्डिंगली वी विल ट्रीट। समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये है डबल साइडेड एरर। देखो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट मैच हो रहा है कि नहीं। हाँ तो जर्नल एंट्री जहां पे बनाना पॉसिबल है वहां पे हम डबल साइडेड एरर बोलेंगे, और जहां पे पॉसिबल नहीं है वहां पे सिंगल साइडेड एरर का एक ही इफेक्ट देंगे। इज इट क्लियर टू यू। यस। So in other words, there are some errors which can be corrected if detected at this stage by making a rectification statement in the appropriate side of the concerned account. तो गलती किसी एक ही साइड में हुआ है तो उस अकाउंट को हम डेबिट क्रेडिट करके वो गलती सुधारेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सच एरर्स में इन्वॉल्व ओनली वन अकाउंट और मोर देन वन अकाउंट। ठीक है बच्चों, एक अकाउंट हो सकता है, नहीं तो एक से ज्यादा अकाउंट भी हो सकते हैं। ठीक है, वन बाय वन कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल, द सेल्स बुक फॉर नवंबर इज अंडरकास्ट बाय 200। ध्यान देना बच्चों, एक एक करके आराम से एग्जांपल बता रहा हूं, ये एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड एरर वेदर इट इज ऑफ वन साइड और टू साइड। यहाँ पे लिखूंगा मैं। ठीक है, द सेल्स बुक फॉर नवंबर इज अंडरकास्ट बाय 200। ठीक है,
टोटलिंग करते समय 200 रुपए से टोटल कम हुई। ध्यान देना बच्चों, सब्सिडरी बुक का कंसेप्ट पता होना चाहिए। सेल्स बुक है, मिस्टर एक्स 1000, मिस्टर वाई 1000, मैंने आपको सब्सिडरी बुक्स में पढ़ाया था। इसके बाद आप लेजर में सेल्स अकाउंट बनाते हो, मिस्टर एक्स अकाउंट बनाते हो, मिस्टर वाई अकाउंट बनाते हो। ध्यान देना, ठीक है। जब आपने सेल्स बुक में मिस्टर एक्स लिखा तो मिस्टर एक्स के डेबिट में टू सेल्स 1000 लिखा, बराबर है ना। सेकेंड इफेक्ट आप इमीडिएटली देते हो लेजर्स में। एंड सेल्स बुक में मिस्टर वाई के अकाउंट में भी आपने इफेक्ट दिया टू सेल्स 1000, ये बराबर दिया, ऐसे एज्यूम कर रहा हूं मैं। लेकिन उसके बाद आप क्या करते हो, पूरा महीना जब खत्म हो जाता है तो इसकी टोटल लेते हो। टोटल लेते समय आपने 200 रुपए से टोटल कम लिया, 2000 लिखना चाहिए था, आपने गलती से 1800 लिख दिया। कैसे टोटल किया आपको पता, ठीक है। अब होगा क्या, ये टोटल गलत होने के कारण ये टोटल मैं सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में बाय टोटल हाउ मच 1800। तो ध्यान देना बच्चों, सिंगल साइडेड एरर मतलब क्या बता रहा हूँ। डेबिट कितने का हुआ, सेल्स डेबिट हुआ 1000 से, सॉरी मिस्टर एक्स डेबिट हुआ 1000 से, मिस्टर वाई डेबिट हुआ 1000 से, यानी डेबिट हुआ 2000 से। आई होप यू आर गेटिंग इट, डेबिट हुआ 2000 से, बट क्रेडिट टोटलिंग गलत होने के कारण 1800 से हुआ। बच्चों ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे कहीं पे बोला है क्या कि पार्टी के लेजर में भी गलत इफेक्ट गया है। द सेल्स बुक फॉर नवंबर इज अंडर कास्ट बाय 200, सिर्फ सेल्स बुक के बारे में बोला है। सेल्स बुक का टोटल गलत, यानी सेल्स के लेजर में पोस्टिंग भी 200 से कम हुआ, यानी सेल्स क्रेडिट 200 से कम हुआ, सिर्फ एक ही क्रेडिट कम हुआ है, क्रेडिट कम हुआ है, एक ही इफेक्ट गलत है। The effect of this error is that the sales account has been credited short by rupees 200. I hope you are getting this now. Since the account is posted by the total of the sales book, there is no error in the accounts of customer since they are posted with the amounts of individual sales. बच्चों ध्यान देना, ये आपको खुद को समझना है कि कस्टमर के खाते में कोई एरर नहीं हुआ है, सेल्स बुक में एरर हुआ है अंडर कास्टिंग का। पोस्टिंग वगैरह सब बराबर है, सेल्स बुक का टोटल लेते समय गलती हो गई और वही टोटल मैंने सेल्स के लेजर में पोस्ट किया हुआ होगा। इज इट क्लियर टू यू? तो आपके सेल्स बुक में गलती है बस, क्रेडिटर में कोई गलती नहीं है। तो कुछ भी करने का और ये मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई के खाते को हाथ नहीं लगाने का, यानी डेबिट साइड को टच नहीं करने का। आपका क्रेडिट साइड 200 से कम है ना, तो क्रेडिट साइड बढ़ाओ। अब क्रेडिट साइड बढ़ाना है यानी सेल को और एक बार क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये तो तय हुआ कि टू सेल्स लिखूंगा मैं, ये तो तय हुआ कि सेल्स को क्रेडिट करूंगा 200 से, डेबिट कौन सा करोगे, कुछ भी करने का, लेकिन डेबिट साइड को हाथ नहीं लगाने का, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई को हाथ नहीं लगाने का। नहीं तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर मिस्टर एक्स को 200 पहले, अरे मिस्टर एक्स पहले से डेबिट है 1000 से, और इसका सेकेंड इफेक्ट जब मिस्टर एक्स में जाके दोगे तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हाँ, तो मिस्टर एक्स को हाथ नहीं लगाने का। तो देखो एंट्री कर नहीं पा रहा हूं, तो दिस इज सिंगल साइडेड एरर। तो एंट्री कर नहीं पा रहे हो तो क्या हुआ, रेक्टिफिकेशन तो करना पड़ेगा। तो बच्चों अभी तक ट्रायल बैलेंस बनाए क्या, नहीं ना, तो लेजर ओपन ही है, तो जाओ ना सेल्स के लेजर में, जाओ सेल्स के लेजर में, और क्या लिखना है, हियर ओनली द सेल्स अकाउंट लेजर अभी भी ओपन है, इज टू बी करेक्टेड। कैसे करेक्ट करोगे, दिस विल बी डन बाय मेकिंग एन एंट्री। एंट्री बोला है यहाँ पे, लेकिन एंट्री नहीं हो रही है बच्चों, फॉर ₹200 ऑन द क्रेडिट साइड बाय अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक फॉर नवंबर, ऐसे लिखोगे। यानी आप क्या करोगे, इस एंट्री को कैसे सुधारोगे, यहाँ पे जाओगे सेल्स बुक में, सॉरी सेल्स के लेजर में, सेल्स अकाउंट में ऑलरेडी 1800 का इफेक्ट आ चुका है टोटल एज पर सब्सिडरी बुक। यहाँ पे आके फिर से क्या लिखोगे, बाय अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक 200, और ये हो गया आपका सेल्स 2000, और ये आप अपने ट्रायल बैलेंस में भेजोगे। तो आप बोलो 2000 का क्रेडिट आया, ये 2000 का डेबिट आया, मिस्टर एक्स 1000, मिस्टर वाई 1000, और आपका ट्रायल बैलेंस हैप्पीली टैली हो गया। आर यू गेटिंग इट? ट्रायल बैलेंस निकाल के दिखाओ क्या, मिस्टर एक्स डेबिट दिखाएगा 1000 का, मिस्टर वाई डेबिट दिखाएगा 1000 का, सेल्स क्रेडिट दिखाएगा 2000 का, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाया मैं। आई होप यू आर गेटिंग इट। ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ये एरर डिटेक्ट हुआ, ये सिचुएशन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके बाद सभी
सभी प्रॉब्लम्स में यही सिचुएशन डिस्कस करने वाले हैं टिल हम नेक्स्ट सिचुएशन में जाए। आर यू गेटिंग इट? तो बच्चों सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ, आई होप यू अंडरस्टूड इट। नाउ आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट। ये एग्जांपल आपको समझ में आया? यस। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड एग्जांपल। व्हाइल पोस्टिंग द डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, द डिस्काउंट ऑफ ₹10 allowed to Ramesh has not been posted while posting the discount column on the debit side of cash book। आराम से करेंगे बच्चों, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, आराम से करेंगे। क्या पढ़ा है? while posting यानी गलती कहां पे हुई है? पोस्ट करते समय। द डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, यानी डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश बुक चैप्टर मैंने पढ़ाया है, डेबिट साइड का डिस्काउंट कॉलम, डेबिट साइड में रिसीट्स होते हैं बच्चों। रिसीट्स के सामने जो डिस्काउंट का कॉलम है, रिसीट जब होगा यानी मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, मेरा खर्चा है। द डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, द डिस्काउंट ऑफ ₹10 अलाउड टू रमेश हैज नॉट बीन पोस्टेड, यानी कैश बुक में आपने 10 रुपए का डिस्काउंट नहीं लिखा। ध्यान दो बच्चों, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये है आपका कैश बुक, उस कैश बुक का ये डेबिट साइड, ये आप रहे आपके 3 कॉलम्स, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। इस कॉलम की बात हो रही है। रमेश के पास से पैसे आए टू रमेश, समझो रमेश के पास से 10,000 रुपये मिले बैंक में, नहीं तो कैश में मिले, ऐसे समझ लो। तो कैश में आते हैं तो कैश कॉलम में लिखूंगा। लेकिन रमेश को आपने 10 का डिस्काउंट दिया था, उसके पास से 10,010 रुपये आने थे, उसने सिर्फ 10,000 रुपये दिया आपको, ऐसे समझ लो फॉर एग्जाम्पल। तो 10 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पे हम लिखते हैं, इज इट राइट? ये आपने नहीं लिखा। और आपको मैंने कैश बुक में बताया था कि डिस्काउंट कॉलम का टोटल यहाँ पे जो कुछ भी आता है, और भी बहुत सारे आइटम्स है, 20, 30, तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा बच्चों? 60 आएगा। लेकिन अगर आप ये 10 नहीं लिखते हो तो टोटल कितना आएगा? 50 आएगा। और ये 50 का टोटल क्या करते हो? डिस्काउंट अलाउड नाम का एक लेजर अकाउंट में हम ओपन करते हैं, बराबर है ना? ये डिस्काउंट अलाउड है ना आपका, और इसमें आप क्या लिखते हो? इसको डेबिट ही करना है क्योंकि ये खर्चा है। रिसिट, पैसे जब मिलते हैं तब मैं डिस्काउंट देता हूँ, तो डिस्काउंट अलाउड इज माई एक्सपेंडिचर, तो डिस्काउंट अलाउड इज डेबिटेड टू टोटल एज पर कैश बुक। यहाँ पे मैंने 50 टोटल लिखा, यानी यहाँ पे अगर मैं 10 लिखता तो ये 60 हो जाता और ये भी 60 हो जाता, यानी आपने खर्चा 10 रुपए से कम रिकॉर्ड किया है। आर यू गेटिंग इट? हाँ, रमेश के खाते में क्या सीन है? रमेश के खाते में वो डिस्काउंट रिकॉर्ड बराबर किया है। आर यू गेटिंग इट? देखो बच्चों क्या लिखा है, व्हाइल पोस्टिंग, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, व्हाइल पोस्टिंग बोला है, while posting the discount column on the debit side of the cash book, the discount of ₹10 allowed to Ramesh has not been posted। बच्चों हमने कैश बुक में बराबर रिकॉर्ड किया है, तो कैश बुक में से ये 60 का टोटल यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में जाएगा, 60 रुपए, बराबर है क्या? ऑब्वियसली इस 10 का दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाना चाहिए? डिस्काउंट अलाउड, अगर 10 की बात करूंगा मैं, समझो यहाँ पे बराबर रिकॉर्ड किया है 10 रुपए। आर यू गेटिंग इट? पोस्टिंग करते समय, अब कैश बुक से हम पोस्टिंग करते हैं, बराबर है। इस एंट्री को कैसे पढ़ोगे बच्चों? इस एंट्री को कैसे पढ़ोगे? देखो बच्चों, 2 एंट्रीज मैंने पास की। पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, हाउ मच? 10,000 टू रमेश, हाउ मच? 10,000। और एक एंट्री हमें पास करनी है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रमेश, करेक्ट है ना? रमेश को 10 से और क्रेडिट करना बाकी है। तो अभी क्या किया आपने? ये कंबाइन एंट्री पास कर दी, बराबर है। कैश बुक के डेबिट में आपने टू रमेश लिखा, तो आपने एंट्री पास की, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 10,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 10 टू रमेश 10,010। आई होप यू आर गेटिंग दिस एंट्री। तो बच्चों ये एंट्री पोस्ट करते समय, कैश बुक में तो बराबर पोस्टिंग हुआ है, अब डिस्काउंट कॉलम में पोस्ट करते समय आपने डिस्काउंट अलाउड में टोटल लेते हो आप लोग, तो ये टोटल तो बराबर ही जाएगा डिस्काउंट अलाउड में, लेकिन रमेश के खाते में आपका पोस्टिंग हो नहीं पाया। देखो बच्चों फिर से पढ़ता हूं, while posting the discount column on the debit side of the cash book, the discount of ₹10 allowed to Ramesh has not been posted where it has not been posted। ये आपको समझना है, ये पोस्टिंग 2 जगह पे होगा ना, एक तो डिस्काउंट अकाउंट में होगा एंड रमेश के अकाउंट में होगा, तो गलती किस अकाउंट में हुई है? देखो बच्चों मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर कैश बुक में आपने डिस्काउंट बराबर लिखा है
तो कैशबुक का ये टोटल लेके आप डिस्काउंट अलाउड कॉलम में पोस्ट करते हो, तो डिस्काउंट अलाउड में गलती होने का चांस 0 है, क्योंकि आप टोटल लेके पोस्ट करोगे। कैशबुक में बराबर रिकॉर्ड किया है, द व्हाइल पोस्टिंग गलती हुई है, रिकॉर्डिंग के वक्त नहीं। कैशबुक इज अ जर्नल, कैशबुक इज अ सब्सिडरी बुक बच्चों, तो उसमें रिकॉर्डिंग बराबर हुआ है, पोस्टिंग के वक्त गलती हुई है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो पोस्टिंग के वक्त गलती हुई है, पोस्टिंग की गलती कहां पे होगी? रमेश के खाते में ही होगी, क्योंकि डिस्काउंट कॉलम का टोटल लेके ही मैं पोस्ट करता हूं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में, यानी इस अकाउंट में गलती होने का चांस 0 है, तो ये बराबर डेबिट हो चुका है। रमेश के खाते में, मुझे रमेश के खाते में बाय डिस्काउंट लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंट्री पढ़ते हो तो आपको समझ में आना चाहिए। कैश अकाउंट डेबिट, रमेश के पास से 10,010 रुपए आने चाहिए थे, तो उसने दिए 10,000, तो कैश अकाउंट डेबिट 10,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 10 टू रमेश, यानी रमेश क्रेडिट होना चाहिए 10,010 से, रमेश के खाते में ये एंट्री छूट गई, तो बाय डिस्काउंट 10 रुपीज, ऐसे रमेश के खाते में मैं लिखना भूल गया। डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में लिखना क्यों नहीं भूले हम सर, वहां कहाँ पे दिया ऐसा? अरे डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में हम टोटल ही लेके जाते हैं डायरेक्टली, रमेश का ऐसा सेपरेट अकाउंटिंग होगा ही नहीं। ये टोटल, अगर आपने कैशबुक में सही लिखा है तो ये टोटल भी सही आया होगा, टोटल में कुछ गलती हुआ है क्या, ऐसे कुछ बोला है क्या? नहीं, तो यही टोटल हम डायरेक्टली डिस्काउंट अलाउड में लिखते हैं, यानी डिस्काउंट अलाउड में वो ऑटोमेटिकली जाएगा। रमेश के खाते में बाय डिस्काउंट लिखना जरूरी है, वो आपने नहीं लिखा, ये पोस्टिंग करना आप भूल गए। समझ में आ रहा है क्या? अक्सर ऐसा होता है। तो देखो फिर से पढ़ता हूँ, व्हाइल पोस्टिंग द डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, द डिस्काउंट ऑफ ₹10 allowed to Ramesh has not been posted, has not been posted. So guys, this is the error. There is no error in the cash book. I hope you are getting it. कैश बुक में कोई गलती नहीं है। द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम, अब समझ में आ रहा है क्या? द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम प्रिज्यूमेबली हैज बीन पोस्टेड टू द डिस्काउंट अकाउंट। ये टोटल मैंने प्रिज्यूम कर रहा हूं, एज्यूम कर रहा हूं कि ये टोटल मैंने बराबर पोस्ट किया होगा। टोटल समझो बाकी के डिस्काउंट कंसीडर करके 60 आता है, तो यहाँ पे 60 जाएगा, जिसमें 10 इंक्लूडेड है, यानी डिस्काउंट डेबिट हुआ 10 से। दूसरा इफेक्ट, रमेश क्रेडिट होना चाहिए 10 से। आर यू गेटिंग इट? रमेश को दिया ना हमने, तो रमेश के पास से 10 रुपए नहीं आएंगे, तो रमेश को क्रेडिट होना चाहिए 10 से। द एरर इज नॉट क्रेडिटिंग बाय रमेश बाय ₹10, तो ये एरर है। दिस शुड नाउ बी डन बाय एंट्री। एक ही इफेक्ट हुआ, बराबर है ना? डेबिट हुआ डिस्काउंट, बट रमेश क्रेडिट नहीं हुआ, तो रमेश को क्रेडिट करना जरूरी है। एरर कब लोकेट हुआ? ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले। तो रमेश का खाता अभी भी खुला है, जाओ रमेश के खाते में, क्या लिखोगे? क्रेडिट साइड को कुछ भी लिखना, यहाँ पे कुछ भी लिखो, ऐसे कुछ भी लिखोगे तो भी चलेगा। 10 रमेश क्रेडिट होना चाहिए 10 से, कुछ भी मत लिखना प्लीज। यहाँ पे क्या लिखोगे प्रॉपरली आप? बाय रेक्टिफिकेशन। और ऐसा कोई खाता नहीं खोल रहे हो रेक्टिफिकेशन, नहीं तो आप बोलोगे सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अकाउंट के डेबिट में टू रमेश लिखना जरूरी है क्या? ना रे बच्चे ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नाम का खाता नहीं खोल रहे हो, सिर्फ आप वहां पे पर्टिकुलर्स में लिख रहे हो। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? रमेश को क्रेडिट करना है 10 से, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं लिखता हूँ, ब्लैंक छोड़ता हूँ और 10 लिखता हूँ, तो टोटलिंग में ये 10 माइनस हो जाएंगे कि नहीं? यस, आई होप यू आर गेटिंग इट। बैलेंसिंग करते समय ये 10 का कुछ तो इफेक्ट होगा ना, यानी रमेश को 10 से क्रेडिट करना जरूरी है, क्योंकि वो रह गया, छूट गया, तो रमेश को क्रेडिट करो। ठीक है बच्चों? यस। तो चलो बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैं कल का लेक्चर इसके साथ कंटिन्यू करूंगा। ये कुछ 8 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, वो पहले डिस्कस करेंगे, सिंगल साइडेड एरर, डबल साइडेड एरर समझने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये भी एक सिंगल साइडेड एरर था, बराबर है ना? क्योंकि इसमें सिर्फ सेल्स क्या हुआ था? क्रेडिट नहीं हुआ था, तो सेल्स का क्रेडिट छूट गया था, तो इसीलिए हमने सेल्स क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे रमेश का क्रेडिट छूट गया है, तो देखो आप सिर्फ क्रेडिट करोगे रमेश का खाता, ये भी एक सिंगल साइडेड एरर है। आई होप यू आर गेटिंग इट। सिंगल साइडेड एरर समझ में आना चाहिए। हाँ, डिस्काउंट में पोस्टिंग के वक्त ही मोस्टली सिंगल साइडेड एरर होता है। ठीक है, फाइन। सो विद दिस बैकग्राउंड वी विल टेक अ ब्रेक हियर, एंड आफ्टर ब्रेक वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। कीप वॉचिंग दिस वीडियोस, आगे बहुत ही धमाल करने वाले हम लोग, बहुत ही मजेदार सेशन होने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।